Hello everyone. My today lecture is for class 12th student and in C++ a very important topic static data member. First, what is static data member? A type of data member that is shared among all objects of class is known as static data member. So ये एक तरह का डेटा मेंबर है और ये सभी इसको शेयर कर सकते हैं। इसको हम लोग ग्लोबली भी डिफाइन करते हैं, ग्लोबल भी कहलाता है। सो दैट शेयर अमंग ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज नोन एज स्टैटिक डेटा मेंबर। और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं विद द कीवर्ड स्टैटिक। The static data member is defined in the class with static keyword. When the data member is defined static, only one variable is created in the memory even if there are many objects of that class. Means बहुत सारे object होंगे तो भी एक ही variable create होता है static नाम से. So a static data item is useful when all objects of the same class must share a common item of information. So एक डेटा जो है और सभी ऑब्जेक्ट उस कॉमन डेटा को शेयर करते हैं और इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं. The characteristic of a static data members are same as normal static variable. जो normal variable का होता है same स्टैटिक डेटा मेंबर्स का भी होता है. सो अब हम स्टैटिक डेटा मेंबर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे. इट इज विजिबल ओनली इन द क्लास विच डिफाइन बट इट इज लाइफ टाइम. ये आपको विजिबल होगा क्लास में, लेकिन इसका जो ड्यूरेशन रहता है वो लाइफ टाइम रहता है. और ये स्टार्ट कब होता है? जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है, और टर्मिनेट होता है जब प्रोग्राम एंड होता है. सो इट स्टार्ट्स व्हेन द प्रोग्राम स्टार्ट्स इट्स एग्जीक्यूशन, ends when the entire program is terminated. It is normally used to share some data among all objects of a particular class. अब हम लोग डिफरेंस देखेंगे द नॉर्मल फंक्शन और स्टैटिक डेटा मेंबर में क्या डिफरेंस होता है. द मेन डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल डेटा मेंबर एंड स्टैटिक डेटा मेंबर इज each object has its own variable of normal data member. हर एक ऑब्जेक्ट का अपना वेरिएबल होता है नॉर्मल डेटा मेंबर में. बट इन स्टैटिक डेटा मेंबर शेयर्ड among all object of that class. So जो भी डेटा हो मेंबर्स होता है that is shared among all objects of the class. Are only one memory location, एक ही मेमोरी लोकेशन डिफाइन होता है, क्रिएट होता है फॉर द स्टैटिक डाटा मेंबर्स. ओनली वन मेमोरी लोकेशन इज क्रिएटेड फॉर स्टैटिक डेटा मेंबर दैट इज शेयर्ड अमंग ऑल ऑब्जेक्ट्स. ये एक डिफरेंस देख लीजिए. अगर हम एक नॉर्मल प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट 1 बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट B1 बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट B2 बना रहे हैं, तो A1 अलग अलग डेटा मेंबर्स को शेयर कर रहा है, B2 अलग अलग डेटा मेंबर्स को शेयर कर रहा है. बट इन स्टैटिक डेटा मेंबर ये एक कॉमन डेटा हमने बनाया है N200 दैट इज शेयर्ड the object B1 and as well as object B2 also. Now we will see what is the use of static data, static class data. Why would you want to use static member data? For example, suppose an object needed to know how many other object of class were in the program. Example है, in a road racing game, a race car might want to know how many other cars is still in the race. So in this case, a static variable count could be included as a member of the class. All the objects would have access to this variable. If it would be same variable for all of them, they would all see the same count. So एक count नाम का वेरिएबल होता है जो कि काउंट करता है और उसको सारे लोग उसको देख सकते हैं. A separate
declaration and definition. Static member data requires an unusual format. Ordinary variables are usually declared and defined in the same statement, but static data, on the other hand, requires two separate statements. The variable's declaration appears in the class definition, but variable is defined outside the class in much the same way as global variable defined. So आपका declaration जो होगा variable declaration वो class definition में होगा static keyword के साथ, और वो defined होगा outside the class. Why is this two-part approach is used? If static data were defined inside the class, it would violate the idea of class definition as only a blueprint. It does not set aside any memory. वो आपका एक ब्लूप्रिंट टाइप होगा, वो मेमोरी नहीं सेट कर सकता है अगर इनसाइड डिफाइन करेंगे, तो आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा इनसाइड और उसका डेफिनेशन लिखेंगे आउटसाइड. Putting the definition of static data members data outside the class also serves emphasizes that the memory space for such data is allocated only once before the program starts the execution. तो program का execution start होगा उस समय ही उसका memory allocation होता है. One static member variable is accessed by entire class. Each object does not have its own version of the variable as it with the ordinary member data. One static member variable is accessed by entire class. एक memory variable के through आप सारे को define कर सकते हैं, access कर सकते हैं. So in this way, static members variable is more like a global variable. हम पहले ही कहा था कि static member function आपका global variable है. आप एक simple program के through देखेंगे that counts the number of object created of a particular class. ये program बता रहा है कि class के अंदर ऑब्जेक्ट काउंट कितना ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ वो काउंट करने के लिए. क्लास का नाम हमने याहू दिया है. प्राइवेट के अंदर यहाँ पर देखिए डिफाइन किया है स्टैटिक इंट n. पब्लिक के अंदर डिफाइन किया है n++ void show you have created an object so far, और यहाँ पर इसको बंद कर दिया है. और ये रहा आपका डिफाइन. किस वे में इसको डिफाइन किया गया स्टैटिक डेटा मेंबर को. इंट याहू इज द नेम ऑफ द क्लास, स्कूप n इक्वल टू 0. तो यहाँ ये क्रिएट किया गया है 0 और मेन के अंदर फिर दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं. दो ऑब्जेक्ट मीन्स n था 0 और यहाँ दो ऑब्जेक्ट बनाए x और y. तो x के से शो किए, फिर एक और ऑब्जेक्ट बनाए z, फिर उसको शो किए. तो यू हैव क्रिएटेड टू ऑब्जेक्ट सो फार. जब हम पहला वाला x शो कर रहे हैं, ये वाला पहली बार जब शो कर रहे हैं ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, तो इसका आउटपुट आएगा यू हैव क्रिएटेड टू ऑब्जेक्ट्स. वाई टू? ये यहाँ दो क्रिएट हुआ. ये कंस्ट्रक्टर और ये n से 0 हमने इनिशियलाइज किया और कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली उसको 1 से इंक्रीमेंट करेगा. और यहाँ जब हम तीसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तब उसका आउटपुट आएगा यू हैव क्रिएटेड 3 ऑब्जेक्ट्स सो फार. हाउ इट्स वर्क, उसी प्रोग्राम का डिफिनेशन है. द प्रोग्राम डिक्लेयर्स अ स्टैटिक मेंबर n टू काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दैट हैज बीन क्रिएटेड. स्टेटमेंट int yahoo scoop n equal to 0 defines the variables and initialize it with 0. ये डिफाइन करता है और वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज किया है. The variable defined outside the class because it will be not a part of any object. So एक ही बार create होता है. It is created only once in the memory and shared among all the objects of this class. The variable definition outside the class must preceded with the class name and scope resolution operator. The compiler does not display any error
If the static data member is not defined, the linker will generate an error when the program is executed. So our program creates three objects X, Y and Z. Each time an object is created, the constructor is executed that increase the value n by 1. यही हमने बताया था, जब जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इसको इंक्रीमेंट करेगा। तो फर्स्ट टाइम जब x शो करेगा तो ये 1 और 2 दो ऑब्जेक्ट बना डिस्प्ले करेगा। थर्ड टाइम z जब आएगा तो ये यू हैव क्रिएटेड 3 ऑब्जेक्ट सो फार डिस्प्ले करेगा। सो दिस इज द हाउ इट इज वर्क। एक और प्रोग्राम देखिए, स्टैटिक डेटा मेंबर्स या स्टूडेंट। यहाँ पर हमने स्टैटिक इंट आर डिफाइन किया रोल नंबर के लिए, जो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। आगे हम देखेंगे उसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं। इंट आर नो मार्क्स, नेम लिया है कैरेक्टर हमने। पब्लिक के अंदर स्टूडेंट नाम का एक कंस्ट्रक्टर बनाया है और उसमें आर प्लस प्लस कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट कर रहा है। और आर जो आया उसको आर एन ओ में हम डाल रहे हैं। वॉइड इन नाम का एक मेंबर फंक्शन है जिसमें नेम लिए हैं, मार्क्स लिए हैं और फिर शो कर रहे हैं रोल नंबर, नेम और मार्क्स। यहाँ देखिएगा हम रोल नंबर नहीं इंटर कर रहे हैं, हम सिर्फ नेम और मार्क्स इंटर कर रहे हैं। स्टैटिक डेटा मेंबर यहाँ हमने डिफाइन कर दिया है आर को। जो भी आर होगा वो कंस्ट्रक्टर में ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता जाएगा और वो आर एन ओ में आता जाएगा और यहाँ हम उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने डिफाइन किया इंट क्लास नेम, स्कूप वेरिएबल नेम को 0 से। यहाँ हमने ऑब्जेक्ट बना दिया क्लास इन S1, S2, S3। S1 में इन को लिया, S2 में इन को लिया, S3 में इन को लिया। मीन्स हमने 3 इंटर किया, 3 ऑब्जेक्ट बनाया और 3 बार शो किया। तो इंटर रोल, इंटर नेम, इंटर नेम, इंटर मार्क्स, इंटर नेम, इंटर मार्क्स, इंटर नेम, इंटर मार्क्स। और रोल नंबर हमने नहीं लिया था। देखिए यहाँ पर, यहाँ इंटर नेम, इंटर मार्क्स, इंटर नेम, इंटर मार्क्स 3 बनाया ऑब्जेक्ट। और रोल नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली वो इंक्रीमेंट करके रोल 1, 2 और 3 लेगा और उसे डिस्प्ले करेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने रोल नंबर लिया है और जो भी 0 से इनिशियलाइज किया था और कंस्ट्रक्टर उसको 1, 2, 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, वैसे ही उसको इंक्रीमेंट करके 1, 2, 3 करेगा और यहाँ हमने डिस्प्ले किया है। तो इस तरह से ये डिस्प्ले करता जाएगा रोल 1, रोल 2, रोल 3। तो दिस इज द स्टैटिक डेटा मेंबर। और इसी को देखा हमने इन दिस प्रोग्राम वी यूजेस अ स्टैटिक डेटा मेंबर आर टू असाइन यूनिक रोल नंबर फॉर ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास स्टूडेंट। The static data member is initialized to 0. The constructor increments its value by 1 when an object is created and then assign the updated value of R with the data number RNO to ensure that each object gets a unique roll number. So this is the static data members and how it is works. That's all from today's lecture. Thank you.